নমস্কাৰ, মই ৰাণা গগৈ। আপোনালোকে চাই আছে ইণ্ডিয়া টুডে নৰ্থ ইষ্ট অসম। এতিয়া অম্বুবাচীৰ সময়। এই অম্বুবাচীৰ সময়ত নীলাচল পাহাৰত দেখা যায় অগণন ভক্ত। বলক যাওঁ আমি কামাখ্যা ধামলৈ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কামাখ্যা ধামৰ এই মূল তোৰণৰ কাষতে। আৰু এই মূল তোৰণৰ পৰাই আৰম্ভ হয় কামাখ্যালৈ যোৱা অৰ্থাৎ নীলাচল পাহাৰলৈ যোৱাৰ যাত্ৰা। তেন্তে বলক যাওঁ কামাখ্যা ধামলৈ। কামাখ্যা মন্দিৰ সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপ্ত হৈ থকা ৫১খনকৈ দেৱীপীঠৰ মাজত এক অন্যতম আৰু অতি শক্তিশালী এই কামাখ্যা মন্দিৰ। অসমৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত হিন্দু ধৰ্মৰ এই প্ৰাচীন মন্দিৰেই হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ। নীলাচলৰ বুকুত অৱস্থিত এতিয়া কামাখ্যা ধামত উখল মাখল পৰিৱেশ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত মা কামাখ্যা ধামত এতিয়া দুগুণে বাঢ়িছে সৌন্দৰ্যৰ শোভা। অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰাই অসমৰ ইতিহাসৰ ৰাজনৈতিক আৰু ধাৰ্মিক দুয়ো দিশত শক্তি উপাসনাৰ কেন্দ্ৰস্থল হৈছে কামাখ্যা। এই কামাখ্যাই অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে। নীলাচল পাহাৰৰ এই একা বেকা পথেৰেই যাব লাগিব মা কামাখ্যাৰ চৰণলৈ। ইতিমধ্যেই দেশ বিদেশৰ পৰা সাধু সন্যাসীসকলৰ সোঁত ববলৈ ধৰিছে মা কামাখ্যা ধামত। কামাখ্যা মন্দিৰৰ নিৰ্মাণকৰ্তা হিচাপে প্ৰবাদ অনুসৰি নৰকাসুৰ আৰু ইতিহাস অনুসৰি কোচনিবৃত্তি মহাৰাজ বিশ্বসিংহ, তেওঁৰ পুত্ৰ নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায়ৰ কথা জনা যায়। তাৰোপৰি এই মন্দিৰভাগৰ আছে বহু ইতিহাস। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে বিভিন্ন সাধু সন্যাসীসকল আহি উপস্থিত হৈছে কি আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কথা পাতিম। आप कौन सा बाबा है आप? हम श्री दिगंबर हैं, सबसे अलग है। श्री दिगंबर। हाँ, ऐसे रहते हैं बगैर कपड़े के। बिना कपड़े पे रहते हैं आप? हाँ। हरिद्वार से आया हूँ और जूनागढ़ को बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम राजवीर गोस्वामी एंड आई एम ऑल्सो एबल टू स्पीक। इफ यू वांट टू फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस देन आई कैन आंसर यू इन प्रॉपर। हर साल आता है आप? जी प्रभु जी, मैं आई हैव विजिटेड फर्स्ट टाइम हूँ। मेरा पहला समय है यहाँ आने का और माता के साथ मैं आया हुआ हूँ। बड़ा ही परम आनंद है। माता कामाख्या की शरण में आने के बाद इस आत्मा को, इस मन को परम शांति मिलती है। ये बड़ा ही अच्छा अवसर है। संत समाज के दर्शन होते हैं, एक से एक भव्य विभूतियाँ यहाँ पर पधार करके अपना अपना भजन ध्यान और साधना करते हैं। यहाँ से जब जाएगा क्या लेके जाएगा कामाख्या? एक शांति का संदेश, एक हिंदुत्व की भावना यहाँ से हमें अपने हृदय में बसा करके जानी है और लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म हो, ये सब जान करके जाना है। उस टाइम माता साक्षात जगदम्बे माँ कामाख्या माता अपने जो है दोनों आंखों का सामने माँ जो साक्षात खड़ा होता है और उस टाइम साधु संतों के ऋषि मुनि जो अष्टादश ऋषि मुनि प्रकट होते हैं, सभी देवता प्रकट होते हैं, तो साधु संतों का अपने आप शक्ति आता तो ये शक्ति का उदाहरण से अगर वो किसी का आशीर्वाद दे उनको तुरंत तो माँ साक्षात जो आंखों का सामने जो आंख बंद करके हम तपस्या करते माँ आंखों का अंदर में जो है माता प्रकट होता है। फिर माता का शक्ति जो दूसरे को देता उनको सब दूर कर वह सुख संपत्ति प्राप्त होता है। कहाँ से आए, कैसे आए, ये मेरे को मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए मेघो को नहीं मालूम, तो हमें को कहाँ मालूम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। সম্প্ৰতি এতিয়া কামাখ্যা ধামত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, কাৰণ এই সময় হৈছে অম্বুবাচীৰ সময়। অম্বুবাচীৰ প্ৰাক্ষণত এনেধৰণে এতিয়া দেশ বিদেশৰ পৰা সোঁত ববলৈ ধৰিছে ভক্তৰ। অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগেই কামাখ্যা ধামৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। ফলস্বৰূপে সেইকেইদিন দেৱী দৰ্শন ভক্তৰ বাবে নিষিদ্ধ। চতুৰ্থটো দিনত খোলা হ'ব মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ আৰু সেইদিনাই দেৱীৰ স্নান পূজা প্ৰভৃতি সমাপন হোৱাৰ পৰাহে শ্ৰদ্ধালু ভক্তই দেৱীক দৰ্শন কৰিব পাৰিব।
এই সময়ছোৱাত হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে পালন কৰে কেতবোৰ নীতি নিয়ম। ভিন্ন নীতি নিয়মৰ মাজেৰেই পালন কৰা হয় অম্বুবাচী। লাখ লাখ ভক্তই এই তিনিওটা দিনত কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌপাশে থাকি নাম কীৰ্তন কৰিব। মন্দিৰৰ বাহিৰতেই ধূপ নৈবেদ্য আগবঢ়াই দেৱীক জনাব প্ৰণাম। উল্লেখ্য যে অম্বুবাচী নিবৃত্তিৰ দিনা পাণ্ডাসকলে ভক্তসকললৈ আগবঢ়ায় ৰক্ত বস্ত্ৰ। কোৱা হয় দেৱী পীঠৰ পৰা অনা এই ৰক্ত বস্ত্ৰবিধ শৰীৰত ধাৰণ কৰিলে অভিষিষ্ট সিদ্ধি হোৱাৰো সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ উঠে। আৰু ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী বাবাৰ লগত নাগা বাবাৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, সাধুবাদ দেখিবলৈ আহিছে, বিভিন্ন বেশভূষালৈ তেওঁলোক যথেষ্ট আনন্দিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি তেখেতসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতোঁতে জানিছিলোঁ যে তেওঁলোক বিভিন্ন বেশভূষাৰ এই বাবাসকল প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে মা কামাখ্যালৈ আহে। আৰু মোৰ সৈতে এগৰাকী গুৰুজী আছে, তেওঁৰ সৈতে মই কিছু কথা পাতিম। गुरुजी प्रणाम। आप कहाँ से आए? आप जहाँ से वहीं से सारी जगह तो एक ही जगह से आता है और एक ही जगह में समाता है। वही माँ पूर्ण सत्य जिसको बोला जाता है, पूर्ण ब्रह्म जिसको माना जाता है, उसको पहचानिए, उसको जानिए। जन्म की साधना के बाद हो सके तो उसकी कृपा हो जाए तो तब जाकर के ये पता चलता है कि माँ ही क्या। आप लोगों के पास नहीं है चश्मा बच्चा लोग? नहीं है, नहीं तो आप ही दे देते बने। वो क्या है चेंजिंग, जैसे ये ज़्यादा दिन पुराना हो गया तो इसको लगा लो, ये ज़्यादा दिन हो गया उसको लगा लो। और आप साथ में आए हैं? हाँ, ये बाबा भी हमारे साथ में आए हैं। कुछ हम लोग नेपाल से आए हैं। नेपाल से? मेन नेपाल है हमारा। नेपाल में रहते हम लोग। हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा भंडार। हाँ जी, हर साल आता है? हाँ जी, हर साल आते हैं। 2016 से आ रहे हैं हम लोग। मोबाइलगिरी बाबा। मोबाइलगिरी बाबा कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से कब आया? हमको आया हुआ 4-5 दिन। हर साल आता है? हाँ, हर एक साल। हम लोग का देवी है, हम लोग का कामाख्या देवी है और कुल देवी है हम लोग का। तो हम लोग को यहाँ आना पड़ता है साल में एक बार। हम लोग जूना खारे के नागा बाबा है, नागा बाबा। जूना खारे के नागा बाबा और हम लोग हर एक साल। এই সময়ছোৱাত কেৱল ভক্তসকলেই নহয়, এই সময়ছোৱাত আগমন ঘটে দেশ বিদেশৰ পৰা অহা সাধু সন্যাসীসকলৰো। এই সময়ছোৱাত সাধু সন্যাসীসকলেও পালন কৰে কেতবোৰ নীতি নিয়ম। ভিন্ন বেশভূষাৰ সাধু সন্যাসীসকলে এই তিনিওটা দিন তেওঁলোকে বিভিন্ন নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পালন কৰিব অম্বুবাচী। মোৰ লগত এগৰাকী ভক্ত আছে, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं कानपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। आपका नाम? अभिषेक। आप पहली बार आए हैं? मैं पहली दफ़ा आया हूँ। कैसा लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मतलब कामाख्या आने से 3 रात पहले मैं सोया नहीं कि मुझे मंदिर जाना। मैं पैकिंग कर रहा था, बहुत सारी बातें मैंने इस मंदिर को लेकर सुनी थी कि ये तंत्रा की यूनिवर्सिटी है, अम्बुबाची मेला होता है। और आप सोचिए कि आज भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम पीरियड्स को छुपाते हैं। हमें शर्म करनी चाहिए, हम पीरियड्स को छुपाते हैं, लेकिन दैट इज़ द सेक्रेड प्लेस। ये पवित्र स्थान है जहाँ पर पीरियड्स को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। एंड दैट्स नेचुरल, ये प्राकृतिक है, महोत्सव होना ही चाहिए, हम क्यों छुपाएं उसे। तो ये ब्लीडिंग डाइटी, ब्लीडिंग गॉडेस हमें बताती हैं, हमें सच से रूबरू कराती हैं। और किसी के लिए पावर है, किसी के लिए तंत्रा है, किसी के लिए ऊर्जा है, किसी के लिए मनोकामना है। व्हाटएवर, जिस आप रूप में, स्वरूप में उन्हें देखेंगे वो आपको वैसे दिखेंगी। मतलब मेरी तो माँ नहीं है, मेरी यही माँ है और शायद बहुतों की माँ होगी, इसीलिए कामाख्या है। और क्या क्या सुना है कामाख्या के बारे में? अब बहुत सारी चीज़ें सुनी है मैंने। सुना है कि ये शक्तिपीठ, जितनी भी शक्तिपीठ हैं उनमें से ये प्रधान पीठ है और उस प्रधान पीठ में यहाँ पर माँ की योनि गिरी थी। तो वो योनि हम बोलने में बहुत सकुचाते हैं, लेकिन मैं आया हूँ, आप आए हैं, हम सबका आधार है, सृष्टि का आधार है, जगत का आधार है और सार है। अगर योनि नहीं होगी तो ना मैं होऊंगा ना आप होंगे, हम कैसे आएंगे, है ना। तो वो इवोल्यूशन की या हमारे आपके आने का द्वार है, दिव्य द्वार है, महाद्वार है, पवित्र द्वार है। तो बस
देखने का नज़रिया है। और ये मंदिर मुझे लगता है मतलब एक इटर्नल पावर है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं 3 रात पहले सोया नहीं इस मंदिर आने के लिए, इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड था। सो बहुत मज़ा आया, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा मंदिर। और देखिए मैं इस मंदिर के रंग में रंगा हुआ हूँ, द ब्लीडिंग डाइटी, ब्लीडिंग गॉडेस, रेड। कितने दिन के लिए है आप? मैं मेला खत्म होने के बाद जाऊँगा। मेला पे तो बहुत भीड़ भाड़ लगता है, बहुत दूर। तो क्या हुआ, मैं उतनी दूर से मैं यही देखने के लिए आया था। उस देखिए फील्ड का खेल होता है। जैसे मैंने कहा कि इस मेला कैंपस में या इस अम्बुबाची के क्षेत्र में बाबा, नागा, अघोरी, तांत्रिक, साधु, तो बहुत सारे जीवन के रंग देखने को मिलते हैं। और मुझे लगता है कि हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये भी एक हिस्सा है जीवन का। और जिसे अध्यात्म चाहिए उसके लिए अध्यात्म है, जिसे भक्ति चाहिए उसके लिए भक्ति है, जिसे मनोरथ चाहिए उसके लिए मनोरथ है, जिसे देवी चाहिए उसके लिए देवी है, और जिसे सच चाहिए उसके लिए सच है, और जिसे टूरिज्म चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स नीलांचल पर्वतमाला की वादियों के बीचों बीच ये मंदिर है। इतनी सीनिक ब्यूटी, आप लाखों रुपए खर्च करके फॉरेन जाते हैं, मैं कहता हूँ आप अपने देश के ऐसे दिव्य स्थानों पर जाइए, आपको बहुत अच्छे लोकेशंस मिलेंगे। जो वीडियोस बनाते हैं उन्हें कंटेंट मिलेगा, जो मंदिर देखना चाहते हैं उन्हें भक्ति मिलेगी, और मेरे जैसे लोगों को कंप्लीट पैकेज मिलेगा। मैं पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग ब्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से या डॉक्यूमेंट्री के पर्सपेक्टिव से या वीडियो के पर्सपेक्टिव से इस मंदिर को देखते हैं, पहली चीज़ की बहुत जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी इन द सेंस कहने का ये है कि ये माता का मंदिर है और उसकी एक मर्यादा है। हम लोग आज के दौर में देखते हैं कि सोशल मीडिया पे उल जलूल कुछ भी कंटेंट तैरते हुए आता है, वेदर इट्स फेसबुक, वेदर इट्स ट्विटर और वेदर इट्स इंस्टाग्राम, कुछ भी उल जलूल आता है। तो पहली चीज़ हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ कंटेंट को कंज्यूम करना है, और दूसरा कंटेंट को डिलीवर करना है। तीसरी चीज़ ये है कि इस मंदिर को लेकर जो मिथक हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, हमें देखना है कि आस्था का दायरा कहाँ है और उन मिसकंसेप्शंस का दायरा कहाँ है ना। हम ये नहीं कि मतलब एक फ़ोटो आया वायरल हुआ तो वो नग्न देवी, दैट्स पर्टिकुलरली रॉन्ग, वो बहुत गलत है।